Hello everyone. As you know that in the previous lecture we have discussed some important types of condensers like water tube condenser. Okay, so these things, water tube condenser and what are the different types of water tube condenser we have discussed in detail, and their working principle also. So working principle of water cooled condensers, water cooled condensers. Has been discussed in the previous lecture. So can you tell me the name of different types of water cooled condenser? Yes. So first was tube in tube or double tube? First was tube in tube or double tube water cooled condenser. Second was shell and coil type. Shell and coil type, and yes, third one was shell and tube type. Okay, shell and tube type. Yes, sir. Our motto was to just condense the refrigerant vapors. Condense the refrigerant vapors. Okay, यही तो था. वेपर्स जो थी हमारे पास उनको हमें कंडेंस कराना था, तो हम क्या करते थे, जो वेपर्स थी उन वेपर्स को हम ऊपर से क्या करते थे, कंडेंसर के अंदर जो शेल होता है उसके ऊपर से हम लोग वेपर्स को नीचे मतलब लीव करते थे, और जैसे ही एंटर कराते थे तो जैसे ही वो जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स थी वो कंडेंसर के पास जाते थे, जो ट्यूब होता था वाटर ट्यूब, उन वाटर ट्यूब के कांटेक्ट में आता, और आने के बाद क्या होता था, वो वेपर्स जो थी वो कंडेंस हो जाती थी, है ना. दिस वाज द बेसिक प्रिंसिपल दैट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, बट आवर मोटो वाज सेम. आवर मोटो वाज टू जस्ट कंडेंस द स्टीम वेपर्स. ओके, वेपर्स ऑफ द रेफ्रिजरेंट्स. सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही शायद, मतलब मेरे को नहीं दिख रहा, पता नहीं और को दिख रहा नहीं दिख रहा. ओके, just wait. Next type of condenser is the evaporative type condenser. Evaporative means so next type of condenser is evaporative condenser. Okay, evaporative condenser, evaporative type condenser. अब आप लोगों ने देखा होगा कि ये कंडेंसर हम यूज कहाँ करते हैं. तो दिस टाइप ऑफ कंडेंसर वी जनरली यूज एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस एज इन द आइस प्लांट्स. वी यूज इन केस ऑफ द आइस प्लांट्स, वी यूज इन केस ऑफ कोल्ड स्टोरेज, where you have already seen that whenever you are having a condenser like this, the condenser tubes we have, suppose these are the condenser tubes like this one, horizontal tubes, and we are having a water pipe over there. So this is, suppose this is the water pipe, and here we are having a water pond. ये आपको water pond होता है where we have collected a large amount of water, and we pump this water, and the nozzles are there. So whenever these nozzles are open, the water comes in contact with the tubes. Okay, this water comes in contact with the tube. When this water comes into contact with the tubes, what happens? Whenever this water comes in the contact with the tube, and air is also blowing over there, we are having a fan over there. So when this fan comes, it just sucks the air over the tubes, and this water, when water which is in the contact with the tubes, this water which comes in the contact with the tube evaporates. It evaporates. ठीक है, ये क्या होता है, एवेपोरेट हो जाता है, वाष्प जो होती है वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा. और जैसे ही ये जो वाटर इन ट्यूब्स के ऊपर गिर रहा है, जैसे ये वाटर में आप समझ सकते हो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तरीके से वेपर्स में कन्वर्ट होगा. तो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए ये क्या करेगा, हीट चाहिए इसको. भाई वाटर हमारे पास है, हम ऊपर से वाटर गिरा रहे हैं नीचे, है ना. जब ये वाटर ऊपर से नीचे गिर रहा होगा तो वाटर इन ट्यूब्स के कॉन्टेक्ट में भी आ रहा होगा, और जैसे ही ये वाटर इस ट्यूब्स के कांटेक्ट में आएगा तो वाटर का कुछ पार्ट क्या हो जाता है, वो एवेपोरेट हो जाता है. क्या हो जाता है, बोलो, टेल मी. एवेपोरेट हो जाएगा. समझ में आ रहा है? हेलो, yes, sir. अब एवेपोरेट हो जाएगा. जैसे ही एवेपोरेट होगा तो आपकी जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स हैं, रेफ्रिजरेंट वेपर्स जो अंदर होंगी वो कंडेंस हो जाएंगी. एक तरीके से कूलिंग इफेक्ट वहां देखने को हमें मिलेगा. अब बोलोगे सर ये ऐसा होता कैसे है, तो मैं आपको विजुअलाइज कराता हूँ चीजों को.
आप लोगों ने देखा होगा जब गर्मी ज्यादा होती है ना, समर का टाइम होता है ना, जब समर का टाइम होता है तो हमारी बॉडी ज्यादा हीटअप होने लगती है, होती है कि नहीं? Yes. सर्दियों का जब टाइम होता है, नॉट सर्दियों का, गर्मियों का जब टाइम होता है, तो अभी गर्मियां चल रही हैं, आपको पता है कि बहुत ज्यादा गर्मी दोपहर में होती है ना, नून Yes, के sir. टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो मान लिया ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, तो हम क्या करते हैं, बकेट हमारे पास रखी होती है, बाल्टी होगी हमारे पास, और उस बाल्टी को हम क्या करते हैं, इसमें से पानी कुछ लेते हैं और अपने हाथ पर यहां लगा लेते हैं। बताओ लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? Yes, sir. और उसके बाद कुछ समय के बाद ये पानी क्या हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, गायब हो जाता है कि नहीं हो जाता है? Yes. हैं? और Yes. जैसे ही ये वाटर गायब होता है, क्या आपको यहाँ पे ठंडा फील होता है? सर आप एक बार रिपीट कर दिया, आपने क्या बोला अभी? मैंने ये बोला, ये आपका मान लिया हाथ है, ठीक है, गर्मियों के टाइम की बात कर रहा हूँ, समर सीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। समर सीजन में क्या होता है, ये मान लिया समर सीजन में मान लिया बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, और ये बकेट है आपके पास, ये बाल्टी है, इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है। आपने क्या किया, अपने हाथ से ये जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा अपने हाथ के ऊपर लगा लिया इस तरीके से चारों तरफ, ठीक है। और जैसे ही आप बैठते हो तो होता क्या है, कुछ टाइम के बाद ये जो वाटर है वो गायब हो जाता है यहाँ पे, है ना, एवेपोरेट हो जाता है। यस एवेपोरेट हो जाता है, मतलब जो उसके बूंद वगैरह जैसे हो वो सब है ना, वो खत्म हो जाती है, एवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद आपको थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है कि नहीं? यस सर। ऐसा ही ट्यूब के साथ होता है, ऐसा ही ट्यूब के साथ होता है। बोलोगे सर ये ठंडा क्यों लगता है हमें, वाई डू वी फील कूल? वो इसलिए कूल करता है क्योंकि यहाँ पर जो हॉट एयर हमारे पास है, क्या है, हॉट एयर है। साथ के साथ ये हॉट एयर हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या है, ज्यादा हो, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। जब ये हॉट एयर और ये बॉडी का टेम्परेचर, इन दोनों की वजह से आपका जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए, इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए बताओ? हीट चाहिए कि नहीं? यस सर। हीट चाहिए, तो हीट कहां से लेगा, हमारे हाथ से ले लेगा कुछ, और कुछ एयर से ले लेगा, ठीक है। तो जो एयर ड्राई थी एटमॉस्फेयर के अंदर, ड्राई एयर थी, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर चला जाएगा, ये आपकी एयर थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाएगी, ठीक है, और आपकी बॉडी ठंडा फील करती है, इट फील्स कूल। समझ में आया? दिस इज द सेम प्रिंसिपल दैट एवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर वर्क। ये वही प्रिंसिपल है जिस पर कि आपका एवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर काम करता है। समझ में आया किस तरीके से वहां कूलिंग होती है? ओके, हेलो, यस सर। चलिए अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं। मान लिया कि आपके घर पे फ्रिज भी नहीं है और मटका भी नहीं है, क्या नहीं है, ना तो ठंडा पानी पीने के लिए मटका है और ना ही फ्रिज है। क्या है? फ्रिज। तो फिर ठंडा पानी कैसे पिएंगे? ठंडा का मतलब है थोड़ा बहुत कूल हो जाए, कैसे करेंगे? यू कैन यूज दिस प्रिंसिपल। यू कैन मटका है ना सर? हाँ, नहीं है ना मटका, तो नहीं है, तो नहीं है। तो आप ये कैसे ठंडा पानी पिएंगे? तो यू कैन यूज दिस प्रिंसिपल अगेन। जस्ट हैव पॉट विद लेट, थाली समझ लो, ये थाली है हमारी, उस पानी को थाली में उड़ेल दो गिलास से, ठीक है जी सर। तो होगा क्या कि इसकी जो ऊपर वाली लेयर होगी ना वाटर की, जब एयर इससे कांटेक्ट में आएगी, जब एयर इस वाटर के कांटेक्ट में आएगी ना, तो क्या करेगी, इस ऊपर वाली लेयर क्या करेगी, इवेपोरेट कर देगी वाटर को। और जैसे ही ऊपर वाला वाटर इवेपोरेट होगा तो अंदर नीचे जो वाटर होगा वो आपका ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। सर फॉर एग्जांपल जैसे देखिए अभी जैसे पानी जैसे गर्म करते हैं हम, ठीक है, गर्म करने के बाद पंखे के नीचे रख देते हैं उसको, बिल्कुल, तो वो हाँ सेम वैसे ही सर वो ठंडा हो जाता है अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इवेपोरेटिव प्रिंसिपल है बेटा, दैट इज द इवेपोरेटिव टाइप, वो इवेपोरेशन की वजह से ठंडा हो जाता है, ठीक है। अगली बात और सुनो जी। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। और इफेक्टिव करना है तो बस पंखा चला दो, उसको फैन ऑन कर दो, फैन ऑन से और हो जाएगा। तो ये वही प्रिंसिपल है जो कि इस कंडेंसर में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसको डायग्राम आप लोगों को दिखाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करता है वो सारी चीजें, ठीक है। ये डेली लाइफ में आप लोग देखते हो, बस थोड़ी सी विजुलाइज करने की बातें होती है। आपने विजुलाइज किया है तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं किया उसको थोड़ी सी दिक्कत है, बट मैं करा दूंगा आप लोगों को विजुलाइज, चिंता मत करो। अभी पूरा डायग्राम दिख रहा है ना। चलिए अब देखो, समझ लो इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ये आपका एक चैम्बर बना होता है, ठीक है, ये आउटर चैम्बर बना होता है। इसके अंदर क्या होता है,
ये नीचे होता है सम्प, जहां पर बहुत सारा वाटर क्या होता है, कलेक्टेड रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा शायद जहां कोल्ड स्टोरेज रहते हैं वहां पर, है ना, देखा है कि नहीं, बोलो। यस सर। है ना, या मैं एक बार जी। दिखा देता हूँ, एक मिनट जस्ट वेट। ये देखा है ना, ऐसा कंडेंसर देखा है कि नहीं देखा है आपने? जब भी निकलते कोल्ड स्टोरेज के पास से, आइस प्लांट के पास से, तो ऐसा कंडेंसर दिखता है कि नहीं? यस सर। यस सर। ये आपका एवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर है। तो देखो ये पतली पतली ट्यूब्स जा रही हैं और इसके नीचे क्या बना होता है, एक पॉन्ड बना होता है, आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, और ये जो आप बड़े वाले पाइप देख रहे हो, यहाँ इसमें वाटर फिल्ड होता है और यहाँ पर नीचे नोजल्स निकले होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही ये नोजल्स ओपन होंगे, वो वाटर क्या करेगा, इन ट्यूब्स के कांटेक्ट से होकर के नीचे गिरने लगेगा और नीचे से पंप के थ्रू हम दोबारा से इसको रिसर्कुलेट कर देते हैं। ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको कैसे, है ना। तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। तो होगा क्या, नीचे हमारे पास सम्प अवेलेबल होगा। ठीक है, ये आपका सम्प है। सम्प का मतलब एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप चीजों को कलेक्ट कर सकते हो, वाटर वगैरह इसमें इकट्ठा होगा। अब मान लिया क्योंकि जैसे जैसे और ये यहाँ पर पंप लगी हुई है, तो ये पंप क्या करेगी, ये जो सम्प है हमारे पास जहां पर बहुत सारा वाटर कलेक्टेड है, इस वाटर को सप्लाई करेगी पंप के थ्रू। ठीक है, ऊपर जाएगा यहाँ पर, और ये नोजल्स निकले होते हैं, स्प्रे नोजल्स, ये ठीक है, यहाँ पे स्प्रे नोजल्स निकले होते हैं जहां से वाटर आपका ऊपर से स्प्रे होगा। ठीक, ये वाटर स्प्रे होगा। और ये आपका नीचे कंडेंसर ट्यूब्स हैं, ये कंडेंसर ट्यूब है। तो कंडेंसर ट्यूब में ये जो आपको हॉट रेफ्रिजरेंट वेपर्स हैं, जो कि कंडेंसर, जो कि आपकी कहां से आ रही होंगी, कंप्रेसर से आ रही होंगी, है ना। कंप्रेसर से आने वाली जो हॉट रेफ्रिजरेंट वेपर्स होती हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर्स, जब वो कंडेंसर के अंदर एंटर करेंगी, जब ये कंडेंसर के अंदर एंटर करेंगे तो क्या होगा, ये जो वाटर जो है, ये वाटर क्या कर रहा है, ऊपर से स्प्रे किया जा रहा है, तो ये वाटर इस ट्यूब के कांटेक्ट में आएगा। और जैसे ही इस ट्यूब के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, ये बिकॉज दिस रेफ्रिजरेंट इज इन एट हाई टेम्परेचर, तो जैसे ये ड्रॉप्स उसकी कांटेक्ट में आएंगी तो ये क्या हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, साथ के साथ ठीक है, अब जैसे ये एवेपोरेट होगा तो यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स हैं वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी, और लिक्विड रेफ्रिजरेंट को हम क्या करेंगे, आउट कर लेंगे, यहाँ से बाहर भेज देंगे। किसको, रिसीवर को या एक्सपेंशन डिवाइस को, या तो आप रिसीवर को भेज देंगे या एक्सपेंशन डिवाइस को भेज देंगे, एक्सपेंशन डिवाइस। ठीक है, एक्सपेंशन डिवाइस को आप भेज देंगे। अब आगे क्या होगा, ये वाटर गिर रहा है तो ये नीचे जाकर के दोबारा से संप में क्या हो जाएगा, कलेक्ट होने लगेगा। साथ के साथ ये हैं आपकी वाटर एलिमिनेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, वाटर एलिमिनेटर्स। यहां पर हम वाटर एलिमिनेटर्स लगा देते हैं, और ये जो पतली पतली सी स्ट्रिप दिख रही है आपको, ये आपकी फिन लगा दी है, जिससे कि आपका हीट ट्रांसफर जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा, हीट ट्रांसफर एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो हीट ट्रांसफर रेट भी इफेक्टिव होगा, जिससे आप हाई अमाउंट ऑफ हीट क्या कर सकते हो, बताओ। हाई अमाउंट ऑफ जो भी है, हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो फिन्स है उन फिन का यूज करेंगे। ठीक है, पतली पतली सी ट्यूब जो आप देख रहे हो, यहाँ पे स्ट्रिप्स देख रहे हो, ये आपका क्या होता है, ये वाटर हेडर होता है। ये जो आप लोग पाइप देख रहे हो ना, यहाँ पे जहां से जिसमें स्प्रे नोजल्स लगे होते हैं, वो वाटर हेडर होता है, जहां पर आपका स्प्रे हेडर होता है, जहां पर आपके वाटर स्प्रे नोजल्स लगे होते हैं, जो वाटर को स्प्रे करते हैं इस कंडेंसर के ऊपर से। और ये आपका देख रहे हो ऊपर वाटर एलिमिनेटर्स हैं। अब होगा क्या कि जैसे जैसे ये वाटर जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा, ये इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेट होने की वजह से, जस्ट वेट, तो फिर हुआ क्या, ये जो ऊपर देख रहे हो ये है वाटर एलिमिनेटर्स। मैंने बोला था कि जैसे ये वाटर इन ट्यूब्स के कांटेक्ट में आएगा, ये इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने के बाद कुछ वाटर जो है, जैसे ही ये थोड़ी थोड़ी आप देख रहे हो ना, स्ट्रिप लगी होती है यहाँ पे, तो जैसे ही ये वाटर जो एयर जो है, ये एयर ओपनिंग होती है, तो ये इसके ऊपर बहुत बड़ा फैन लगा होता है। ये फैन क्या करेगा, इन एयर को, इस एयर को यहां से सक करेगा। ये बड़ा वाला फैन क्या करेगा, ये आपकी एयर इन, यहां से एयर भी जाएगी। ठीक है, एयर इन होगी, तो ये बड़ा वाला जो फैन होगा, ये बड़ा वाला फैन एयर को यहां से सक करेगा इन ट्यूब्स के ऊपर से। ठीक है, तो ट्यूब्स के ऊपर से जैसे ये एयर को सक करेगा, साथ के साथ क्या होगा कि ये जो ड्रॉपलेट्स होंगी वाटर की, ये इस ट्यूब के कांटेक्ट में आएंगी, और जैसे ये एयर इसके कांटेक्ट में आएगी, ये इस वाटर को इवेपोरेट करेगा, और साथ के साथ इस ट्यूब का टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स हैं, वो रेफ्रिजरेंट वेपर्स का जो टेम्परेचर होगा वो ऑटोमेटिकली डाउन होगा, और वो कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, वो आपका कंडेंसेशन वहां पर स्टार्ट होगा। जरूरी नहीं कि टेम्परेचर डाउन हो, बट हाँ, ऑब्वियसली दे विल कंडेंस, बिकॉज वी आर जस्ट गेटिंग द हीट।
यहाँ से हीट रिजेक्ट हो जाएगी इस एयर को, वाटर जो कि इवेपोरेट हुआ है। अब ये जो देख रहे हो ये आपका वाटर एलिमिनेटर्स है। जैसे ही ये एयर क्या करेगी, ये एयर इस इवेपोरेटेड वाटर को अपने साथ लेके जाएगी और यहाँ पर हम थोड़ी सी स्ट्रिप लगा देते हैं, फंटी टाइप की लगा देते हैं। तो जब ये एयर इसके कॉन्टेक्ट में आएगी तो कुछ वाटर यहाँ पर जो है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाटर जो है वो ऑब्वियसली दोबारा से नीचे गिरना स्टार्ट होगा और जो एयर है वो एयर इस फैन के थ्रू हम लोग एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। एटमॉस्फेयर में एयर को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो ये एयर ओपनिंग होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब साथ के साथ ये लगाते इसलिए हैं क्योंकि मान लिया कि कुछ कोई आप लोगों को पता होगा कि कुछ बर्ड्स वगैरह होते हैं, बर्ड्स होती हैं, पक्षियां वगैरह होते हैं, वो भी यहाँ पे ना गिरे, कोई गंदगी वगैरह या मान लेते हैं वो भी यहाँ ना आए, पॉलीथिन वगैरह ये सारी चीजें यहाँ ना आए, इससे बचने के लिए हम ये सारे काम करते हैं। अब देखो मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे वाटर नीचे ड्रॉप हो रहा है तो होता क्या है, इवेपोरेशन इसका होगा, तो इस संप के अंदर वाटर का लेवल डाउन होता जाएगा, है ना, होगा कि नहीं। अभी वाटर लेवल यहाँ पर है, कुछ टाइम के बाद वाटर लेवल यहाँ हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वाल्व लगा देते हैं, फ्लोट वाल्व लगा देते हैं, और जैसे ही इस संप के अंदर वाटर का लेवल एक लिमिट से कम होता है, ये फ्लोट वाल्व क्या करेगा, ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद हम मेकअप वाटर जो होगा यहाँ से सप्लाई कर देंगे नीचे से, ठीक है। जैसे ये मेकअप वाटर सप्लाई होगा इसका लेवल ऑटोमेटिकली एक कांस्टेंट लेवल तक मेंटेन रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल हाउ डज एन इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर वर्क, ठीक है। ये दिस इज द बेसिक प्रोसीजर दैट आई हैव डिस्कस विद यू। दिस इज द पंप, इन पंप के थ्रू ही हम लोग इस वाटर को दोबारा से सप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इस स्प्रे हेडर को। और ये आपकी कंडेंसर ट्यूब्स हैं या कंडेंसर पाइप्स हो गई एक की, और ये आपका हॉट रेफ्रिजरेंट यहाँ से बाहर इन आएगा और आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट हम लोग सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल हाउ डज एन इवेपोरेटेड टाइप कंडेंसर वर्क। सो वट एवर द थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड हियर आई कैन जस्ट रिटन ओवर हियर, सो यू कैन रीड इट, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को सारी चीजें बता देता हूं। यहां से कुछ पॉइंट्स लिखने के, तो देखो दिस कंडेंसर यूज बोथ एयर एंड वाटर, तो इसमें एयर भी होता है और वाटर भी होता है एज अ कंडेंसिंग मीडियम। तो आप लोगों ने देखा था कि नीचे से हम लोग एयर सप्लाई कर रहे थे ट्यूब्स के ऊपर से, और साथ के साथ वाटर ऊपर से स्प्रे कर रहे थे, ठीक है। तो इट यूजेस बोथ द एयर एंड वाटर एज अ कूलिंग मीडियम। सेकेंड, दीज कंडेंसर परफॉर्म द फंक्शन कंबाइंड ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर एंड कूलिंग टावर्स, ठीक है। तो ये वाला जो कंडेंसर होता है वो कूलिंग टावर के साथ साथ एक वाटर कूल कंडेंसर का भी काम करता है। एंड इन इट्स वर्किंग द वाटर व्हेन पंप्स फ्रॉम द सम्प, वाटर को हम सम्प से पंप करते हैं टू द स्प्रे हेडर एंड स्प्रेड थ्रू द नोजल्स, ठीक है। तो जो आपका स्प्रे नोजल्स होते हैं वहां से हम वाटर को नीचे सप्लाई करते हैं ओवर द कंडेंसर कॉइल्स और कंडेंसर ट्यूब्स, ठीक है। ये जो आपके कंडेंसर ट्यूब्स हैं उन कंडेंसर ट्यूब्स के ऊपर से इन विच द वेपर रेफ्रिजरेंट इज फ्लोइंग, तो जो ट्यूब्स होती हैं उन ट्यूब्स में आपका वेपर रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है। द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट टू द वाटर थ्रू द कंडेंसर ट्यूब वॉल्स, तो जो आपकी कंडेंसर की वॉल्स होती हैं, जो ट्यूब्स होती हैं, यहाँ से हीट का ट्रांसफर होता है रेफ्रिजरेंट से वाटर को। सो द वाटर एज यू नो व्हेन वाटर इज कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विद द ट्यूब इट इज वेटिंग, वेट करेगा, है ना, उसको गीला कर देगा। जो आपकी ट्यूब्स होती हैं उन ट्यूब को क्या करेगा, ये गीला करेगा, और जैसे ही इट विल वेटिंग द आउटसाइड सरफेस ऑफ द ट्यूब एट द सेम टाइम एज द फैन इज ड्रॉइंग एयर फ्रॉम द बॉटम साइड ऑफ द कंडेंसर एंड इट इज डिस्चार्ज एट द टॉप ऑफ द कंडेंसर। तो मैंने बताया जैसे ही आपकी जो स्प्रे ट्यूब्स हैं, इन स्प्रे ट्यूब से वाटर आ रहा है इसके कांटेक्ट में, ट्यूब्स के कांटेक्ट में, और साथ के साथ हम नीचे से क्या कर रहे हैं, एयर सप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, the air evaporates the water that is in the contact with the tubes। तो जो आपका वाटर है ट्यूब के कांटेक्ट में है उसको क्या करेगा, ये इवेपोरेट कर देगा, और जैसे ही वो इवेपोरेट होगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। द वाटर दैट इज वेटिंग आउटसाइड द surface of the tube, at the same time a fan draws air from the bottom side of the condenser and it discharges at the top of the condenser. The air evaporates the water from the outside surface of the tube by the absorbing the latent heat of evaporation to cool it। तो वो latent heat of evaporation है उसको क्या कर देगा, ले लेगा, और साथ के साथ जो आपका वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे होता है, ऐसा उसी तरीके से होता है जैसे कि आपका कूलर काम करता है। घरों में आप लोगों ने देखा होगा ना, कूलर होता है, कूलर में क्या होता है,
आपका फैन लगा होता है बाहर, मतलब फैन से हवा ड्रॉ करते हैं, और साथ साइड में क्या होता है, वाटर फ्लो करता है ना। साइड वॉल्स जो होती हैं और बैक वॉल्स होती हैं, उसकी साइड वॉल्स जो होती हैं, वहां पर आप लोग क्या करते हो, पंप से कूलिंग, जो पंप कूलर वाटर पंप होती है, उससे वाटर को यहाँ पे नीचे ड्रॉप करते हैं कि नहीं, ये वाटर आपका नीचे गिरता है। तो एयर क्या करेगा, ये जो फैन क्या करेगा, इन जहां ये जो आपकी साइड वॉल्स हैं इनके कांटेक्ट में वाटर होगा, तो उस वाटर के ऊपर से क्या करेंगी, ये एयर को सक करती हैं, ठीक है, एयर को क्या करती हैं, सक करेंगे। और जब ये एयर सक होगा तो क्या होगा, जो एयर है और वाटर हम लोग ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं, तो एयर क्या करेगी, एयर की हीट की वजह से वाटर का कुछ पोर्शन एवेपोरेट हो जाएगा, और एवेपोरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए, तो वो हीट बाकी वाटर से ये कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। जिससे आप लोग देखते होंगे कि लगातार जो आपका कूलर होता है उस कूलर में वाटर लेवल डाउन होता जाता है, वो एवेपोरेशन की वजह से होता है। और जैसे ही वो एयर क्या करेगी, उस वाटर को एवेपोरेट करेगी, तो कुछ वाटर तो एयर के साथ एवेपोरेट हो जाएगा, और साथ के साथ जो वाटर है उस वाटर का टेम्परेचर, जो एयर है उस एयर का टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। एयर आपकी हॉट होती है तो वाटर हम लोग ऊपर से क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं साइड से, जो आपकी साइड वॉल्स है वहां से। तो जब ये हॉट एयर जो है और ये हमारे पास वाटर स्प्रे करते हैं, तो इस हॉट एयर से हम क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जो वाटर है इस वाटर को दे देते हैं, तो आपका वाटर इवेपोरेट हो जाता है, जिससे आपका जो कूलर है उस कूलर के अंदर वाटर लेवल कॉन्स्टेंटली डाउन होता जाता है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल हाउ डज ए कूलर वर्क। द सेम प्रिंसिपल वी आर यूजिंग हियर। तो वो क्या करता है, जो लेटेंट हीट है इवेपोरेशन की, वाटर की इवेपोरेशन की, तो वो क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, साथ के साथ उसका एयर का टेम्परेचर आपका डाउन हो जाएगा, और आपका जो एयर है वो कूलर जो है वो ठंडी हवा देता है ना। So this is the basic principle and describing the application. So most of the cooling takes place by the evaporation process, because when the water comes in contact with the tubes, the air that we are drawing by the fan, it will evaporate the water, and the cooling takes place over the tubes. The heat for the evaporation of the water is taken from the refrigerant, ठीक है। तो जो आपका वाटर है उसके evaporation के लिए हीट हम कहां से ले रहे हैं, जो आपका रेफ्रिजरेंट वेपर्स हैं जो ट्यूब के अंदर फ्लो कर रही हैं। द रिमेनिंग वाटर, सो द वाटर, जो बाकी वाटर जो होता है वो नीचे ड्रॉप कर जाता है सम्प के अंदर। सो द रेफ्रिजरेंट, वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंस इनटू द लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ठीक है। जिससे क्या होता है, जब आप हीट उसके निकाल लोगे तो वो कंडेंस हो जाएगा। The cold water that drops into the sump is recirculated by the pump, ठीक है। जो वाटर नीचे गिरा है उसको हम दोबारा से पंप के थ्रू जो वाटर हेडर है उसको सप्लाई कर देंगे। ऑल्सो एज यू नो द वाटर इज इवेपोरेटिंग, सो मेकअप वाटर इज ऑल्सो सप्लाइड टू द सम्प विच इज कंट्रोल बाय द फ्लोट वाल्व। तो हम लोग फ्लोट वाल्व लगा देते हैं। फ्लोट वाल्व जैसे आप लोगों ने देखा होगा, फ्लश जो होते हैं हमारे, है ना, फ्लश लगे होते हैं ना बाथरूम में, तो ऐसे ही एक फ्लोट वाल्व होता है, वो भी इसी तरीके से काम करता है। एंड द लास्ट पॉइंट, the eliminators is provided above the spray header to stop particles of water escaping or going with the discharge air, ठीक है। तो जो आपकी एयर जा रही होती है ऊपर कंडेंसर के ऊपर, तो उनको उस वाटर को स्टॉप करने के लिए, उसको स्केप करने के लिए एयर को हम क्या करते हैं, यहां पर स्टॉपर्स लगा देते हैं, ठीक है। वाटर एलिमिनेटर्स यहां पर आप लोग लगा देते हैं। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल हाउ डज एन एवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर वर्क। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग how does you find that your condenser has been blocked, that your condenser has some issue, okay। तो अगर आपका कंडेंसर में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से कंडेंसर को आप करेक्ट करोगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, वो रेक्टिफिकेशन, उसकी ट्रबल शूटिंग, रेफ्रिजरेटर का कंडेंसर होता है, आपका एसी का कंडेंसर होता है, किस तरीके से काम कर सकते हैं और क्या क्या पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए, थैंक यू।